Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Enrol and back. आज के वीडियो में I'm going to talk about the most common type of question that NTA keeps on asking year after year in geometrical optics. तो इस तरीके का क्वेश्चन जैसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे शिफ्ट में आया, you should be able to do it and get full marks in these questions. So this is going to be like free marks for you by the end of this lecture. Let's take a look. So let's quickly recap the basic formula लेंस के लिए, मिरर के लिए, स्लैब के लिए, वो सब फटाफट रिकैप कर लेते हैं. तो सपोज मेरे पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया. सो वी प्लेस आवर ओरिजिन एट द पोल. बिहाइंड द मिरर इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बन गया. दिस इज माय मिरर फॉर्मूला. V क्या है? दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट of the image, u is the x coordinate of the object, f is the x coordinate of the focus. तो यहाँ पर focus कहाँ पर होता है? Focus is at a distance, the distance is r by 2, where r is the radius of curvature. ठीक है? So v, u, f जो है वो सारे x coordinates है इस formula में. This is my mirror formula. This is applicable for concave as well as convex. Obviously concave के लिए f negative है, you can see that, and convex के लिए the focus would be on the positive x axis. ठीक है? So convex mirror के लिए the focal length would be positive. ठीक है? Let's talk about lens. I'm just drawing a biconvex lens here, but general formula लिखता हूँ मैं. So once again, we choose our x-axis. We choose our x-axis, positive x-axis in the direction of incident rays. मतलब अगर incident rays ऐसे हैं, कहीं ऑब्जेक्ट से ऐसा आ रहा है और यहाँ पर भी incident rays obviously on the silvered surface रहेगा, ठीक है? On the reflecting surface incident rays will be present. So we जो left to right अगर incident rays है तो positive x-axis right में choose कर रहे हैं. So in this case 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. ठीक है? Once again v is the x coordinate of the image, u is the x coordinate of the object, and 1 by f के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है अपने पास. यहाँ पर mu2 is the refractive index of the lens, mu1 is the refractive index of the surrounding. So this is applicable when the surrounding is same on both sides. R1 is the radius of curvature of the first surface on which the rays are incident, and R2 is the radius of curvature of the second surface जहाँ से rays are emerging. ठीक है? तो radius of curvature R1, R2 once again are the x coordinates of the center of curvature. ऐसा लिखता हूँ मैं. तो बायकॉन्वेक्स के लिए R1 जो है वो क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो R1 विल बी पॉजिटिव. सेकेंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है? लेफ्ट में है, तो R2 विल बी नेगेटिव बिकॉज इज द एक्स कोऑर्डिनेट. सो साइन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? दिस इज फॉर अ बायकॉन्वेक्स एंड अलग अलग लेंसेज के लिए ऑब्वियसली R1 R2 का साइन अप्रोप्रिएटली अपने को लेना. ऑलराइट, सो दैट इज द वे वी हैव अ मिरर एंड अ लेंस. एंड व्हाट अबाउट अ स्लैब? अगर मेरे पास स्लैब है, लेट्स से थिकनेस t, एंड यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा. द इमेज इज शिफ्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड दैट शिफ्ट द अमाउंट is given by t into 1 minus 1 by mu, where mu is the refractive index of the slab. In general अगर मुझे लिखना है तो I'll write it as, let's say, mu relative, when mu relative is the refractive index of the slab divided by refractive index of the surrounding. ठीक है? Slab divided by surrounding, that is the value that should come here. T is the thickness. तो उस amount से वो image gets shifted in the direction of incident rays. तो incident rays ऐसे है, उस डायरेक्शन में the image gets shifted compared to the object. and वो amount कितना है shift का? given by t into 1 minus 1 by mu, when mu is slab divided by surrounding. Alright, so ये जो basic formula है, इनके combinations पर आते हैं questions. So like I said, we are going to do the most common type of questions that NTA keeps asking every year, and that kind of question is जहाँ पर they give you combinations. combination मतलब दो lenses दे दिया, या एक lens एक mirror दे दिया, हो सकता है लेंस और स्लैब दे दिया. ठीक है?
तो ये इसको कैसे कॉम्बिनेशन में यूज करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. लेट्स टेक अ लुक. सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. तो मेरे पास ऐसे दो लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर लेंस 1 का, 9 सेंटीमीटर लेंस 2 का, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, एंड ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर पर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज. सो फाइनल इमेज क्या होने वाला है, बेसिकली एक इमेज बनेगा लेंस 1 में, दैट इमेज विल देन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स फिगर आउट कि लेंस 1 में इमेज कहां पर बनेगा. सो यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, द इंसिडेंट रेज आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस. सो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -6, बिकॉज ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माय ओरिजिन. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट इज -6 सेंटीमीटर्स. फोकल लेंथ कितना है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, +24. सो लेट्स अप्लाई द लेंस फॉर्मूला. 1/v minus 1/u, and u itself is -6, should be 1/f. So 1/v should be equal to 1/24 minus 1/6. ठीक है. तो देखो ये बन जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा -8 सेंटीमीटर. राइट. नाउ -8 सेंटीमीटर मतलब कि लेंस 1 में जो इमेज बना वो यहाँ पर बना. लेट्स कॉल इट I1. दिस इज इन लेंस 1 एट 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है. -8 आया ना, मतलब x नेगेटिव x एक्सिस पे. I1 विल नाउ एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस. तो सेकंड लेंस के लिए जो I1 है दैट इज एट 8 सेंटीमीटर्स फ्रॉम फर्स्ट लेंस, एंड दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर्स है, तो ये 18 सेंटीमीटर्स है. नाउ आई वांट टू फाइंड द फाइनल इमेज. अब फिर से मैं करता हूँ 1/v. ये जो फोकल लेंथ क्या दिया, 9 सेंटीमीटर दिया ना. एक्चुअली अगर तुमको वो रिजल्ट पता है बेसिक कि 9 सेंटीमीटर का डबल है ये, तो इट्स लाइक द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, सो इट विल फॉर्म एट 2f ऑन द अदर साइड. मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि फाइनल इमेज बन जाएगा एट 18 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस 2. ठीक है. ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ. इफ यू नो द रिजल्ट कि 2f लेफ्ट हैंड साइड पे 2f पे ऑब्जेक्ट है, तो राइट हैंड साइड 2f पे इमेज बनेगा. बट बेसिक से भी कर सकता है अगर ये पता नहीं है तो, बिकॉज जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. यहाँ पर u is -18 because I1 is the object now for the second lens, and focal length तो 9 दिया हुआ, तो देखो क्या आ जाएगा 1/v minus, so 1/v should be 1/9 minus 1/18, which is 1/18. So v is 18 centimeter as we already saw if you know that result. Fine. So हो गया. So lens 2 के 18 सेंटीमीटर पर is the final image. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 + 10 28 + 6 34. That's your answer. ठीक है. देख लो. Let's look at another question from JEE 2023. मेरे पास दो lenses है, दोनों का focal length 20 centimeters दिया हुआ, identical lenses है, separated by 60 centimeters, and we have a distant object, very far away object. मतलब क्या, that the rays are coming parallel. ठीक है. From infinity आ रहा है. Okay. So find the distance between the first lens and the final image. ये पूछा गया. So it's very straightforward. ये जो लेंस, जो इंसिडेंट रेज है, वो पहले तो कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, दे विल कन्वर्ज एट द 20 सेंटीमीटर मार्क, बिकॉज दैट इज द फोकस. करेक्ट. सो दैट विल देन, दैट इज इमेज 1, दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस 2 विच इज नाउ एट 40 सेंटीमीटर्स. अब लेंस 2 पे 40 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है एंड उसका फोकल लेंथ 20 है, तो ऑब्वियसली 40 पे फिर से बनेगा, इट्स लाइक 2f पे है, 2f ऑन द राइट हैंड साइड फाइनल इमेज बनेगा. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सो फाइनल इमेज इज एट 40 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेकंड लेंस. सो फर्स्ट लेंस से कितना डिस्टेंस है, 100 सेंटीमीटर्स, एंड दैट इज योर आंसर. देख लो. लेट्स लुक एट येट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2023. मेरे पास एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर्स दिया. तो ये जो कर्व्ड सरफेसेस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर्स है, एंड दोनों लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 दिया हुआ है. Object is at infinity, so rays are parallel. Find the distance of the final image from the concave lens. So, सबसे पहले तो I will need to find the focal length obviously. ठीक है. So, concave के लिए incident ray ऐसे है. So, this becomes R1, which will tend to infinity. Flat surface का radius of curvature will tend to infinity. और दूसरे का से x-axis ऐसे है. Positive x-axis for the first lens is to the right because incident rays are from left to right. So इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा बिकॉज इट्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव.
So R2 would be positive 30. ठीक है. So 1/f would be सराउंडिंग कुछ नहीं बोलेगा तो एयर मानना है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 दिया है. So 1.75 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ठीक है. तो ये 0.75 हो जाएगा. 0.75 मतलब 3/4. 3/4 इंटू, तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा. करेक्ट. -40. ऑलराइट. एंड F2 के लिए नाउ द इंसिडेंट रेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द सेकेंड लेंस, ये मेरा R1 हो गया. उसका x कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पे, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है सेंटर ऑफ कर्वेचर का. सो R1 इज +30 एंड R2 इज इन्फिनिटी, फ्लैट सरफेस. So इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 1.75 minus 1 into 1/30 minus 1/infinity. So F2 हो जाएगा +40 सेंटीमीटर. ठीक है. एज एक्सपेक्टेड कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव आना ही चाहिए फोकल लेंथ. अगर उल्टा कुछ गड़बड़ आया then you should quickly stop and check your calculation. Okay, so let's now do the question. तो infinity से रेज आ रहा है, कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे? They will converge at the focal length. यहाँ पे focal length -40 दिया हुआ है. -40 मतलब ये रेज डाइवर्ज करेंगे ना, these rays will diverge and they will converge at -40, मतलब यहाँ पर कन्वर्ज करेंगे. मतलब कन्वर्ज नहीं करेंगे, you have to extrapolate them, extend them back in order to converge them artificially. So the image in the first lens would be 40 centimeter to the left. Now that is the object for the second lens. So for the second lens, the object is at 80 centimeters. Now इसका focal length कितना 40, तो obviously ये 2f पर है. So directly मैं बोल सकता हूँ right hand side पे 2f पे बनेगा, 80 centimeter पे बनेगा. ठीक है. Alright, so final image is at 80 from the second lens. So therefore, from the first lens कितना हो जाएगा? 80 + 40, 120 centimeters, and that's your answer. देख लो. Let's look at a question जहाँ पे लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन आ गया. तो मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है और एक प्लेन मिरर है at a distance of 20 centimeters. I want to find the objective distance from the lens given that the image formed by the mirror is 5 centimeters behind the mirror. So what is happening is कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके कारण कुछ इमेज बनेगा. I1 बोलता हूँ इन लेंस, देन उसका एक और इमेज बनेगा. दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, तो उसका इमेज बनेगा इन द मिरर. लेट्स कॉल इट I2. तो बोला गया कि I2 is at 5 centimeters from the mirror. So obviously this I1 is at 5 centimeters. So I1 is at 15 centimeters from the lens. So basically the question is now giving you in the formula for the lens the value of V, because x coordinate of the image from the lens अभी 15 centimeters हो गया. ठीक है. So अब लेंस फॉर्मूला लगा देता है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, V का वैल्यू अभी 15 दे दिया. The rays are incident from left to right, so right hand side is positive x-axis, so V is +15, F is +10 centimeters, and now formula लगा दो. So 1/15 minus 1/u is 1/f. So 1/u would be 1/15 minus 1/10. ठीक है. तो ये बन जाएगा, u का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा. The negative sign makes sense. The object is on the negative x-axis. ठीक है. So distance कितना हो जाएगा? Answer would be 30 centimeters. देख लो. Let's look at a question from JEE 2022. मेरे पास एक point object है 60 centimeters from a convex lens जिसका focal length 20 centimeters दिया हुआ है. उसके सामने 10 centimeters दूरी पे एक convex mirror रखा हुआ है. ठीक है. बोला गया कि the final image after everything happens coincides with the object again. So find the focal length of this convex mirror. So what is going to happen is यहाँ से जो rays निकलेंगे they will converge on the convex mirror, and for the final image to coincide with the object, ये ध्यान से सुनना, we want the rays from the object जो emerge हुए lens से, they should be perpendicularly incident on the convex mirror. And the reason is कि perpendicular incidence होगा तो automatic वापस रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन बाय 180 डिग्रीज ऑफ द रेस. इंसिडेंट इस तरीके से होगा तो रिफ्लेक्टेड रेस विल बी एग्जैक्टली along the same line in which the incident rays were traveling, and therefore they'll keep on traveling along the same line and converge back at the object. ठीक है. So that's how the final image will also be coinciding with the object itself.
तो यहाँ पर व्हाट डज दिस मीन कि द रेज आर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट, इसका मतलब द इमेज दैट वुड हैव फॉर्म्ड इन द कॉन्वेक्स मिरर शुड बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्योंकि रेज आर नॉर्मल टू द मिरर, मतलब नॉर्मल टू द स्फीयर, मतलब इज अलोंग द रेडियस एंड रेडियस विल कन्वर्ज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ आई कैन डू इट वेरी इजीली. तो ये 60 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, इसका इमेज निकालते हैं, मतलब ये इमेज यहां पर बनना चाहिए इन द फर्स्ट लेंस, द इमेज शुड बी हियर. सो लेट्स सी, आई कैन राइट 1/v माइनस 1/u. u का वैल्यू कितना है, मैं सब ये लेंस के लिए लिख रहा हूं, तो u का वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर है, बिकॉज राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस should be equal to 1/f, 1/20. So 1/v would be 1/20 minus 1/60, तो v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा. So मतलब ये जो लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर्स, तो ये 10 है, therefore this becomes 20 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब the center of curvature is at 20 सेंटीमीटर्स ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ तो उसका हाफ होगा, so उसका फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स, and that's your answer. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि whenever the final image coincides with the object, when you have a reflecting surface, the rays should be normally incident on the reflecting surface. देखो, let's look at a question from JEE 2022 जहां पर एक ग्लास स्लैब के साथ कंबाइन कर देते लेंस को. So क्वेश्चन बोला गया है कि मेरे पास पहले एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, 2.4 मीटर्स डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस, एंड एक स्क्रीन है 12 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस. So object is placed such that the image is formed on the screen. Now you introduce a glass plate, thickness दिया हुआ 1 cm, refractive index 1.5. By what distance should the object now be shifted so that the image again forms on the screen? So यहाँ पर सबसे पहले let's calculate the focal length of this lens, because तुमको पता है कि for this situation u का value right hand side positive x axis है, so u का value -2.4, so -240 centimeters, and v का value 12 centimeters. So can I say 1/v minus 1/u, तो प्लस हो जाएगा, should be 1/f. ठीक है, तो ये बन जाएगा, फोकल लेंथ बन जाएगा 240 डिवाइड बाय ऊपर 20 आ जाएगा, 240/21, ठीक है, मतलब वो बन जाएगा 80/7, ठीक है. ऑलराइट, नाउ इस सिचुएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट अपन यूज कर सकते हैं, नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इसका मतलब क्या कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो I can reverse the, I can exchange the object and the image. मतलब if the object is placed here, then the image will exactly be placed in the place of the object, because light rays जो जा रहे हैं उसको मैं exact reverse कर सकता हूँ. They will follow the same exact path. They will retrace their path. ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो जो ये इमर्जिंग रे था वो भी इंसिडेंट बन जाएगा, जो इंसिडेंट था वो भी इमर्जिंग होके ray will again converge at the original object. तो यहाँ पर वो useful क्यों है, because I want the object का location which is unknown, but I know the image is again here. So let me take that as the object and then उसका image मैं निकालता हूँ, that will be the location of the actual object. ठीक है, तो मेरे पास जो situation है उसको मैं reverse कर रहा हूँ. So my object now, just imagine मन में we are placing the object here when we are trying to find the image. So ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर प्लेस करूँ, इसके कारण शिफ्ट कितना हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल गेट शिफ्टेड, दैट शिफ्ट बिकॉज ऑफ द ग्लास प्लेट विल बी हाउ मच, थिकनेस विच इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 minus 1/μ, 1/μ कितना दिया 1.5, विल बी 2/3, तो शिफ्ट विल बी 1/3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, नाउ दिस इमेज, लेट्स कॉल इट I1, विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस. अब ये डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर्स माइनस 1/3, तो वो हो जाएगा 35/3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब मुझे फाइनल जो इमेज है उसका लोकेशन निकालना है, तो ये मेरा V हो जाएगा. नाउ यू हैव टू रियलाइज कि द इंसिडेंट रेज, बिकॉज वी अज्यूम द ऑब्जेक्ट हियर, द इंसिडेंट रेज आर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस नाउ. सो U का वैल्यू -35/3 रखूंगा. So 1/v minus 1/u, that will become 3/35, should be equal to 1/f. कहाँ गया, 7/80. All right. तो यहाँ से v का वैल्यू I'll leave the calculation up to you. You'll get it as 560 centimeters. ठीक है,
सो देयरफॉर 5.6 मीटर्स हो गया. सो फाइनली माय ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट शुड बी एट 5.6 meters and therefore the shift should be 2.4 से 5.6 मतलब 3.2 meters. All right, देख लो. Now let's look at a type of question जहाँ पे the lenses are in contact with each other. देखो ऐसा क्वेश्चन JEE 2022 में आया था. टू आइडेंटिकल बाइकॉन्वेक्स लेंस, उनका फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 है. Are in contact with each other and the space between them is filled with liquid जिसका refractive index also दिया हुआ है and the combination का focal length पूछा गया. So whenever you have like multiple lenses जितने भी हैं, whatever they could be convex, concave, whatever, इन सबका focal length दिया हुआ है f1, f2, f3 and so on. The equivalent focal length comes out to be just the addition of the reciprocals. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे. तो यहाँ पर let's draw the diagram. मेरे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है बट उनके बीच में लिक्विड भर दिया. सो द लिक्विड इटसेल्फ एक्ट्स लाइक अ बाइकॉन्केव लेंस. सोचो, आई कैन जस्ट इमेजिन दैट दिस इज लाइक बाइकॉन्वेक्स लेंस प्लस ये जो लिक्विड का जो है दैट इज लाइक अ बाइकॉन्केव लेंस प्लस अनदर बाइकॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. So between the surfaces of or between the materials of the lens and the liquid, you can always introduce a thin layer of air. A thin layer मतलब infinitesimally thin layer of air, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा light ray को. So therefore I can just say कि यहाँ पर air है तो इन दोनों के बीच में भी एक thin layer of air मान लिया, इन दोनों के बीच में भी एक thin layer of air मान लिया. क्यों कर रहा हूँ मैं? Because the lens maker's formula requires कि the surrounding on both sides of the lens must be same. तो यहाँ पर एयर है, इस लेंस के लेफ्ट में एयर है बट राइट में लिक्विड है, तो वी कांट यूज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला डायरेक्टली. तो दिस इज लाइक अ क्यूट ट्रिक. यू इंट्रोड्यूस अ थिन लेयर ऑफ एयर. जस्ट इमेजिन अ थिन लेयर ऑफ एयर बिटवीन द लेंस एंड द लिक्विड. दैट थिन लेयर इज सो थिन दैट इट वोंट मेक अ डिफरेंस टू द डिविएशन ऑफ द लाइट रे. ठीक है, बट देन वी कैन देयरफॉर यूज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले तो मुझे इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ दिया हुआ है दैट इज अज्यूमिंग दैट एयर इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस. तो वो तो अपने को पता चल गया, इसका फोकल लेंथ 15 है, इसका भी फोकल लेंथ 15 है. बट व्हाट अबाउट इसका फोकल लेंथ? तो ये जो फोकल लेंथ है इस वाटर का या लिक्विड का, उसका म्यू 1.25 दिया हुआ है. तो आई कैन राइट 1/f शुड बी इक्वल टू 1.25 माइनस 1 इंटू, बिकॉज दोनों साइड पे एयर माना है मैंने. ठीक है, सो 1.25 माइनस 1 इंटू 1 बाय, अब ये जो रेडियस है R1 एंड R2 वो कितना है? सो फॉर दैट वी नीड टू यूज दिस वैल्यू ऑफ 1.5. सो फॉर द बाइकॉन्वेक्स लेंस या R1 या R2, अब दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम मानना पड़ेगा. क्वेश्चन में और कुछ डेटा दिया नहीं है. आइडियली दे शुड इक्विकॉन्वेक्स लेंस. इक्विकॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड सेम है. बट अदरवाइज मतलब वी हैव टू अज्यूम इट बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि एनटीए विल नॉट बी एज क्लियर एज दे शुड बी इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पर वो अजम्पशन अपने को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो R1 R2 दो अननोन्स आ जाएंगे. ओके, सो यहाँ पर मैं बाइकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 1/15 लिखता हूँ, 1/f को 1/15 लिखता हूँ. शुड बी इक्वल टू म्यू दिया हुआ 1.5 माइनस 1 इंटू, अब लेट से दोनों का मैग्नीट्यूड R है. ठीक है, सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है. सो 1/r माइनस R2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R2 है दैट विल बी माइनस R बिकॉज उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है. ठीक है, सो आई विल हैव 1/15 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज हाफ इंटू 2/r. तो R का वैल्यू कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, अब वही R यहाँ पर भी है. ऑलराइट, सो नाउ कैन आई से दैट ये जो R1 है इसके लिए R1 will be -15. Why? Because उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव एक्स एक्सिस and R2 will be +15.
So this will be -15 and this will be +15. ऑलराइट, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 2/15. सो इसका फोकल लेंथ, इसका 1/f वुड बी -1/30. ठीक है, तो अब अपने को ये फॉर्मूला लगाना है. सो 1/f इक्विवेलेंट would be 1 by focal length of the lenses, which is 1/15 plus 1/15 plus ये वाले liquid वाले का, which is -1/30. ठीक है, so 2/15 minus 1/30, so that will be F equivalent would be 10 centimeters. Okay, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे. देखो, now let's do a question from JEE 2019. यहाँ पर ऐसे मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है. ठीक है, एंड उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड μ1 दिया, जो कॉमन इंटरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. सो वंस अगेन वी विल इंट्रोड्यूस a thin layer of air, because left hand side right hand side पे air है, and to use lens makers formula we need the air, we need the surrounding to be same on both sides of the lens. Alright, एक thin layer of air introduce कर दे जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. So can I say for the concave lens, ये जो R1 है वो तो इनफाइनाइट हो गया, एंड R2 है वो R बन गया. So, इसका जो फोकल लेंथ होगा 1/f1 would be μ2 दिया हुआ है, so μ2 - 1 into 1/infinity minus 1/r. ठीक है, and for the convex lens, ये R1 will become R and R2 will be infinite. So I'll have 1/f2 would be equal to μ1 - 1 into 1/r1 minus 1/infinity. ठीक है, so 1/f equivalent कितना हो जाएगा? 1/f1 plus 1/f2. So μ1 minus 1/r plus this quantity minus μ2 minus 1/r. So can you see I'll have μ1 minus μ2 divided by r. ठीक है, so F equivalent आ जाएगा r divided by. All right, देख लो. Let's look at a situation जहाँ पे lens and mirror are in contact. मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक लेंस है और ये एक मिरर है, दे आर इन कॉन्टैक्ट, या मल्टीपल लेंसेज हो सकते हैं, एक मिरर हो सकता है. तो इस सिचुएशन में दिस बिहेव्स लाइक अ मिरर, द एंटायर सिस्टम बिहेव्स लाइक अ मिरर, बिकॉज अल्टीमेटली जो रेज आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होकर तो वापस आने वाले हैं. सो इट्स लाइक द सिस्टम इज रिफ्लेक्टिंग द रे बैक. सो द सिस्टम अल्टीमेटली इज बिहेविंग लाइक अ मिरर. If the ray was able to go to the right hand side, then we would say it would behave like a lens. So यहाँ पर अगर इसका f1 है, f2 है, fm is the mirror का focal length बोलता हूँ. The equivalent focal length, remember this is like a mirror, the equivalent focal length comes out to be equal to 1/f of mirror minus twice of the equivalent focal length of lenses. ठीक है, ये अपने को याद रखना है. ये सब सारे lenses का equivalent focal length है जो standard अपन ने formula already देखा था. And this is 1/f focal length of mirror minus twice. अब ये इसका डेरिवेशन में नहीं कर रहा हूँ, बट अपने को एग्जाम के लिए याद रखना है. Alright, so इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं. So let's look at a question that came in JEE 2015. तो क्या है, मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है, एंड एक प्लेन मिरर है, दे आर इन कॉन्टैक्ट. ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस a and the final image is formed at a distance a/3. So I want to find a in terms of f, and options दिए हुए थे. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो कैन आई से दैट ये लेंस एंड मिरर टुगेदर दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल मिरर. सो उसका अगर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा? इसका फोकल लेंथ f है और फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना हो जाएगा? इट्स अ प्लेन मिरर. सो प्लेन मिरर कैन बी ट्रीटेड एज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस. तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, सो 1/f इक्विवेलेंट वुड बी 1 by focal length of mirror minus twice of focal length of the lens. एक ही लेंस है यहाँ पर मेरे पास. Alright, so ये focal length of mirror infinity है. So 1/f equivalent becomes minus 2/f. Alright, so this is behaving like a mirror. Focal f equivalent is minus f/2. So it's behaving like a concave mirror because concave mirror का focal length negative होता है. So this entire system can be replaced by a single concave mirror. अब बोला गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस a है
एंड इमेज का डिस्टेंस a/3 है, ठीक है। सो यहाँ पर द सेम कन्वेंशन दैट वी हैव बीन यूजिंग इज वैलिड हियर ऑल्सो कि इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना -a एंड ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट -a है, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट -a/3 है, राइट, बिकॉज दे आर ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब लेट्स राइट द इक्वेशन। सो 1/v -a/3 प्लस 1/u should be 1/f, f मतलब वही मिरर का which is -2/f, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस सब हट गया, तो 4/a इज इक्वल टू 2/f, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2f। ऑलराइट, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a, और f के टर्म्स में पूछा गया था ना, ऑप्शंस दिए थे, तो दैट इज हाउ यू विल डू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। देखो दैट्स इट फॉर टुडे। इस तरीके का सवाल अगर तुम्हारे जेई शिफ्ट में आया, तुम्हारे अप्रैल शिफ्ट में आया, यू शुड बी एबल टू डू इट कॉन्फिडेंटली, क्विकली एंड गेट योर फ्री मार्क्स in your JEE mains exam. All the best. See you at the top. Good night.